السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے کس عمل کو کرے کہ وہ اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں مقبول ہو، نیک ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں بہت ہی مختصر میں اور عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ویسے یہ مضمون جو ہے، میں جو ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ قریب 5 گھنٹے کا مضمون ہے۔ اس پر قریب 5 گھنٹے تک گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ان 5 کلاک کو، اس سمندر کو کوزے میں بھر دوں۔ مقصد آپ کو مجھے سمجھانا ہے، تو میں ان باتوں کو 7 سے 8 منٹ 10 منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بندہ اگر نیک بننا چاہے تو صرف اس کو 5 نسخے کا استعمال کرنا ہے۔ کون سے نسخے؟ آپ نسخے کا نام سن کے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی دوا کھا لیں گے یا کوئی اگر کیپسول کھا لیں گے، ٹیبلٹ کھا لیں گے تو اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ جی نہیں میرے دوستو، یہ روحانی نسخے ہیں، یہ روحانی دوا ہے۔ اس کے ڈاکٹر خود آپ ہیں، آپ کو کرنا ہے۔ وہ 5 نسخے کون سے ہیں؟ میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ نمبر ایک کیا ہے کہ اگر آپ کو نیک بننا ہے، اگر آپ کو صالح بننا ہے، اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا ہے، تو آپ کسی ولی اللہ سے نسبت جوڑ لیں، آپ کسی ولی اللہ کی صحبت لے لیں۔ اس لیے کہ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا ہے، صحبت صالح صالح کنت، صحبت طالع طالع کنت۔ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسا مضمون ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہو کے رہتا ہے۔ یہ مسئلہ سچ ہے، ہو جاتا ہے صحبت کا اثر۔ آدمی کیا، در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی تو نسبت ہے کہ اگر ہم نے کسی ولی اللہ سے صحبت لے لی، کسی ولی اللہ کی صحبت سے جڑ گئے، ان کی خدمت میں جڑ گئے، تو یہ ذریعہ اتنا بہترین اور اتنا آسان ہے اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ، اتنی رفتاری کے ساتھ آپ کو خدا کا مقبول بندہ بنا سکتا ہے، جو آپ سال ہا سال عبادت کرنے کے بعد بھی وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کی صحبت میں رہ کر جو مرتبہ اور جو مقبولیت اور جو کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ 100 سال کی عبادت سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، گناہوں سے اپنے آپ کو حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے گناہ؟ تو آئیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں اور باطینی گناہوں کو بھی چھوڑیں۔ اللہ اکبر! کیا میرے دوستو، ظاہری گناہ تو وہ جسے لوگ دیکھتے ہیں، جسے لوگ دیکھ سکتے ہیں، جسے دنیا والے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو اوپن ہے، وہ تو ظاہر ہے۔ لیکن وہ گناہ
जो बातिन में है उसे भी छोड़ना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जाहिरी गुनाह को छोड़ना कभी कभी आसान हो जाता है, लेकिन बातिनी गुनाह ऐसा है जिसमें अच्छे अच्छे लोग मुलव्विस रहते हैं। तो सवाल यह है, बातिनी गुनाह कौन सा है? आइए मेरे दोस्तों, इस पर भी काफी कुछ गुफ्तगू की जा सकती है। ये हसद करना, ये बातिनी गुनाह है। तकब्बुर बातिनी गुनाह है। घमंड बातिनी गुनाह है। कीना कपट ये बातिनी गुनाह है। या चालबाजी, किसी को धोखाबाजी देने के लिए अपने अंदर प्लान बनाना, ये बातिनी गुनाह है। मेरे दोस्तों, ये मैंने वो गुनाह आपको बता दिए जो बहुत ही ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से बातिनी गुनाह हैं जिससे हमें बचने की जरूरत है। तो नंबर 2 में क्या आ गया कि आपको जाहिरी गुनाह से भी बचना है और बातिनी गुनाह से बचना है। नंबर 3, गुनाह के असबाब से बचो, यानी कि जिस जगह पर गुनाह होने के इम्कानात हैं, जिस जगह पर जाने से गुनाह हो सकता है, वो जगह पर भी ना जाएं। तो आइए इस पर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है अपने कलाम पाक में, तिल्का हुदूदुल्लाही फला तक़रबुहा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की कायम की हुई हदें हैं, उनके करीब भी मत जाओ। क्या मतलब? जो अल्लाह ने हदें लगा दिए, जो अल्लाह ने लकीरें खींच दिए, उसको पार मत करो। अल्लाह ने हमें बता दिया है कि हलाल क्या है, अल्लाह ने हमें बता दिया है कि हराम क्या है। तो जो हराम है उस पर हदें खींच दी गई है, उसके करीब भी मत जाओ। तो वो जगह या वो गुनाह जिसके हो जाने के इम्कानात हैं, पॉसिबल हैं, आप उसके करीब भी मत जाओ। अब आइए नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। इसलिए कि जिक्र जाकिर को मज़कूर तक पहुंचा देता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है, जब वो दिल की गहराइयों से और यकसुई से और इश्क मोहब्बत में और पूरे ध्यान के साथ, पूरे ध्यान के साथ जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। इसीलिए तो मेरे दोस्त, इसलिए कि अल्लाह का नाम सबसे बड़ा नाम है, अल्लाह का नाम सबसे बड़ा नाम है। और अल्लाह का जिक्र रूह को कुव्वत देता है, रूहानियत को कुव्वत देता है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में क्या खूब इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह का जिक्र वो है जो तुमको तमाम गमों से राहत देता है, तमाम गमों से नजात देता है, तमाम मुसीबतों से नजात देता है, तमाम परेशानियों से छुटकारा देता है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया की गुमराही से बचें, दुनिया के दलदल से बचें, दुनिया की परेशानी से बचें, दुनिया की आफतों बलायात से बचना है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र करें। इसलिए कि हम अपने जिस्म को मजबूत करने के लिए अच्छी अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, और अल्लाह और रूह को मजबूत करने के लिए रूह की ग़िज़ा जो है वो है अल्लाह का जिक्र। तो हमें नेक बनना है तो अल्लाह का जिक्र भी करना होगा। और 5वां नुस्खा क्या है? आइए मेरे दोस्तों, 5वां नुस्खा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कायम रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलें। इसको अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए रसूल, ए नबी, अपने आप ऐलान फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के मकबूल बंदे बनना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो।
अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मेरे अजीजों, पूरे कुरान में ये बारहा बताया गया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसी तरह कुरान में फरमा गया है, और इसको एक जगह तो कुरान में यूं फरमा गया है, सूरह फातिहा में तो यूं फरमाया गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या फरमाते अल्लाह, ए अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, और उन लोगों के रास्ते से बचा जो तेरे गजब में मुबतला हुए। तो अल्लाह पर किन का इनाम है, अल्लाह पर किन की रहमत बरस रही है? वो नबीगीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। अगर सालिहीन में से एक एक का नाम लिया जाए तो गौसे आजम पर अल्लाह की रहमत, दाता गंज बख्श लाहौरी पर अल्लाह की रहमत, सैयदना अहमद कबीर रिफाई पर अल्लाह की रहमत, शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार पर अल्लाह की रहमत, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी पर अल्लाह की रहमत, ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर अल्लाह की रहमत, बाबा फरीदुद्दीन पर अल्लाह की रहमत, ख्वाजा साबिर अलाउद्दीन पर अल्लाह की रहमत, मखदूम सिमनानी पर अल्लाह की रहमत, और जो सालिहीन है अल्लाह की रहमत। तो अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रहो, अगर तुम ये चाहते हो कि इस्लाम पर कायम रहे, अगर तुम ये चाहते हो कि सीरत मुस्तफा पर कायम रहे, तो आप मेरे नेक बंदों के बताए हुए रास्ते पर चलो। इसीलिए तो मेरे दोस्तों, तरीकत में कहा गया है कि तुम किसी सालिहीन की, तुम किसी पीरो मुर्शद की, तुम किसी पीरे तरीकत के हाथ पर अपना हाथ दे के मुरीद हो जाओ, ताकि तुम गुमराही से बचो, ताकि तुम शैतान के मकर फरेब से बचो। इसीलिए मेरे दोस्तों कहा गया है कि तुम अहलुल्लाह के गिरोह में आ जाओ, तुम अहलुल्लाह के दामन को थाम लो। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये 5 नुस्खे ऐसे हैं जो हमें सालिहीन की तरफ लेके जाता है, जो हमें नेक बंदों की तरफ लेके जाता है, जो हमें अल्लाह का नेक बंदा बना देता है। तो मेरे अजीजों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।